Good morning, students. So, today I am starting the remaining part of the chapter number 4 of history. The chapter name is Thinkers, Beliefs, and Building. Students, do you know that when we start this chapter, some kind of topic we have already discussed, and these topics were the introduction of this chapter, number 1. The number 2 was the Great Sanchi Stupa, and the third one was the background of the different religions. Background of the different religions means to say about the Jainism, about the Buddhism, or about the Brahmanicals. Now, in today's class, I am starting the new topic, and the topic is the message of Mahavira, Mahavir Swami ka Sandesh. Student, do you know that Mahavira was the 24th Tirthankar of the Jainism? भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता है. Before starting the topic, I want to tell you about some fact of Mahavira. Students, do you know where Mahavira born? Who were their parents? Who were their parents? उनके माता पिता कौन थे? उनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ? So first I want to tell you these information. Students, Mahavira, his childhood name was Vardhamana, and he was the 24th Tirthankar of the Jainism. He was born in Vaishali district of Bihar. At present, Vaishali is situated in Bihar. His father's name is Siddharth and his mother's name was Trishla. उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम त्रिशला था. Now I am starting this topic. According to Jainism, जैन धर्म के अनुसार entire world is animated. Animated means so many kind of living things are there in the world, such as the stone, rocks, water have life. पत्थर हो, चट्टाने हो या पानी हो, दुनिया में विश्व में हम जो भी चीज़ें देखते हैं हर किसी में लाइफ है, हर किसी में जीवन है. That's why according to the Jainism, entire world is animated. Non-injury student, do you know about the non-injury? Non-injury means ahimsa. Non-injury to living beings is central idea of Jain philosophy. Students, अहिंसा जो है वो जैन धर्म का, जैन दर्शन का सबसे प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, सेंट्रल आइडिया माना जाता है. अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैन धर्म के अनुसार द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा. जैन धर्म में ये बताया गया है, जैन धर्म के अनुसार ये माना गया है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म और उसका पुनर्जन्म उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है. स्टूडेंट, डू यू नो अबाउट द कर्मा? कर्मा मीन्स द गुड एंड द बैड एक्शन ऑफ पीपल. एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जो भी अच्छे और बुरे काम करता है, दीज थिंग्स आर नोन एज कर्मा. And the cycle of birth and rebirth of a person is depend on the karma. Next thing is, in message of Mahavira, that was to free oneself from the cycle of karma, asceticism and the penance are required. जैन धर्म के संदेश में अगला जो आता है वो ये है कि एक व्यक्ति अपने आप को किस तरह से कर्म के चक्कर से साइकिल से अपने आप को स्वतंत्र रखे, दूर रखे. सो द साइकिल ऑफ कर्मा, asceticism and penance are required in Jain philosophy. Karma, I have already told you about karma. Now I am explaining the asceticism. Asceticism means self-discipline. Self-discipline means आत्म अनुशासन. आत्म अनुशासन बहुत ज़रूरी है ताकि हर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सके. And penance are required. Penance means a punishment that you give yourself to show you are sorry for doing something wrong. Penance
एक दंड की तरह है, एक पनिशमेंट की तरह है। जब आप कोई काम करते हो और अगर वो गलत है तो उसके लिए दंड भी ज़रूरी है, कंपलसरी है। Jaina monks and nuns took 5 vows. Vows means promises. Vows means promises. जैन धर्म के जो भी साधु और संत हैं वो 5 तरह की शपथ लेते हैं, वायदे करते हैं। These 5 vows are: number 1, to abstain. To abstain. The meaning of this: to decide not to do something from किलिंग, यानी कि किसी को भी मारने का निश्चय ना करना। मतलब वी हैव टू फोकस ऑन द नॉन इंजरी ऑफ द लिविंग बींग्स। हमें लोगों के ऊपर या किसी भी जीवित प्राणी या किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी जानवर के ऊपर किसी भी तरह की कोई अहिंसा नहीं करनी चाहिए। सेकेंड इज टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग. Stealing, do you know very well stealing? I am talking about here chori karna. Means to say, in Jain philosophy says that a person did not have steal anything. एक पर्सन को किसी भी तरह से कोई चोरी नहीं करनी चाहिए। To abstain from lying, झूठ नहीं बोलना चाहिए। Fourth one is to observe celibacy, means to say the not married. व्यक्ति को शादी नहीं करनी चाहिए, विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए। And the number 5th is to abstain from possessing property. और उसके अलावा हमें संपत्ति भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। Students, now I am telling you the spread of Jainism in India. Jainism spread to many parts of India. Jain scholars produced a wealth of literature in Prakrit, Sanskrit and the Tamil language. पूरे भारतवर्ष में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी विदेशों के अंदर, कई देशों के अंदर जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। डिफरेंट काइंड ऑफ मौर्यन रूलर्स played an important role to spread the Jainism in many parts of India as well as around the world. And different kind of texts are written in Jainism, and these kind of texts are written in the different languages, and these languages are the Prakrit, Sanskrit and the Tamil languages. These were the languages that were spoken by the many people at that time. ये वो भाषाएं थी जो उस समय आम जनता बोला करते थे। I want also tell you that in Jainism there are 2 kind of सेक्ट। जैन धर्म के अंदर 2 तरह के सेक्ट होते हैं। नंबर 1 इज द श्वेतांबर एंड द सेकेंड वन इज द दिगंबर। सो स्टूडेंट, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जैनिज्म। नाउ आई एम कमिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बुद्धा, द एनलाइटेंड सोल। लाइक द महावीर स्वामी, बुद्धा वॉज अ ग्रेट सोल. बुद्धा वॉज the great philosopher, the thinker in Buddhism. In different way, we can say that the Buddha was the founder of the Buddhism. बुद्ध को ही, गौतम बुद्ध को ही बुद्धिज्म का फाउंडर माना जाता है। Now, starting this topic, I want to tell you about some fact of Gautam Buddha. Gautam Buddha born in लुम्बिनी, नेपाल. गौतम बुद्धा का जो जन्म है वो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। वर्तमान में यह नेपाल में है। ही डाइड इन कुशीनगर. कुशीनगर जो कि भारत बिहार में आता है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। हिज फादर्स नेम वॉज शुद्धोदन एंड हिज मदर्स नेम वॉज माया देवी. His wife name was Yashodhara and his son's name was Rahul. And at the age of 42 he left his home. उन्होंने अपना घर छोड़ दिया. Now, Buddha was one of the most influential teachers of that time whose message spread across the subcontinent. बुद्धा अपने ज़माने के, अपने समय के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रभावी एक अध्यापक, एक मॉन्क, एक फिलोसोफर थे।
और उन्होंने भी अपने संदेश को चारों तरफ सब कंटिनेंट में फैलाया. सब कंटिनेंट मीन्स, डू यू नो अबाउट सब कंटिनेंट? एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस वर्ड इन योर ज्योग्राफी. सबकंटिनेंट मीन्स देर आर मैनी काइंड ऑफ कंट्रीज अराउंड इंडिया. भारत के चारों तरफ बहुत से उसके पड़ोसी देश हैं. एंड दीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर नोन एज सब कंटिनेंट. आई एम टॉकिंग हेयर श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान, दक्षिण कोरिया, etc. Siddharth was the son of a chief of the Shakya clan. सिद्धार्थ का जन्म, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लुम्बिनी नेपाल में हुआ और ये इनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ और इनका वंश शाक्य क्लैन था. शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ. He was deeply shocked when he saw an old man. जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, आ सिक मैन एक बीमार आदमी को देखा और आ कॉप्स एक लाश को देखा, तो उससे उन्हें बड़ा दुख पहुंचा. सो ही लेफ्ट द पैलेस. उन्होंने अपना महल छोड़ दिया. एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ओन ट्रुथ. और सत्य की खोज में बाहर निकल गए. आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मीन्स द नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना. जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट महात्मा बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट इन बोध गया. एंड बोध गया प्रेजेंटली कम्स इन बिहार. He came to be known as the Buddha. जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको बुद्ध कहा जाने लगा और the enlightened one. For the rest of his life, अपने जीवन के बचे हुए समय में, he taught धम्मा. धम्मा means the path of righteous living, यानी कि जीवन जीने का सही तरीका. उसके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी शिक्षाएं दी. So students, this is the topic regarding the Buddha. This is the knowledge regarding the Buddha. So I am starting the another topic of this chapter, that is the teachings of Buddha. बुद्ध की शिक्षाएं. What kind of teachings of Buddhas were there? According to the Buddha's teaching, the first was, according to the Buddhism, the world is transient. Transient means continuing for a short period of टाइम. यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार संसार जो है वो क्षणभंगुर है, यानी कि कभी भी इसका जो है विनाश हो सकता है. एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और लगातार विश्व जो है वो बदलता रहता है, चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म. एंड इट इज़ ऑल्सो सोललेस, और इसकी कोई भी आत्मा नहीं है. दिस इज अनंता, यह अनंत है. Within this transient world, sorrow means dukh. Sorrow is intrinsic to human existence. Intrinsic means the thing, the belonging to something as part of its nature. किसी भी वस्तु की प्रकृति का स्वभाव. यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का एक ही कारण है, वो ये है कि मानव का जो अस्तित्व है वो किसी वस्तु की प्रकृति की तरह होता है, क्योंकि मानव का जो स्वभाव है, नेचर है, वो भी समय के साथ बदलता रहता है. द लास्ट बट नॉट लीस्ट टीचिंग ऑफ द बुद्धा, it is बुद्धा emphasized individual agency. बुद्ध ने इंडिविजुअल एजेंसी की तरफ फोकस किया है. एजेंसी मीन्स इंडिविजुअल, एजेंसी मीन्स कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल. यानी कि बुद्ध ये कहते थे कि हर किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के ऊपर ध्यान देना चाहिए. जिस व्यक्ति में जैसी क्षमता हो, कैपेसिटी हो, उसके अनुसार ही उसको काम करना चाहिए. एंड राइटियस एक्शन एज द मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, और जन्म के चक्र से अपने आप को बचाना चाहिए. एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, फुलफिलमेंट ऑफ वंस ओन पोटेंशियल, वही द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्यों को करना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना. एंड निबाना मीन्स निर्वाणा. इन बुद्धिज्म द स्टेट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस
achieved after giving up personal desires. बौद्ध धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देता है, उन्हीं इच्छाओं को त्यागने के बाद उस व्यक्ति को वास्तविक रूप में शांति और खुशी की अनुभूति होती है, खुशी का एहसास उस व्यक्ति को होता है. So students, these are the teachings of Buddha. So now I am ending today's class. The next topics of these chapter we will discuss in the next class. Thanks.